Hello guys. Few months back I had appeared for Deloitte FTH interview, but unfortunately I could not able to clear that in the last round. So I thought to share with you all about my experience so that you should not repeat my mistake. Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Shruti. So सी क्या होता है ना कि लोग अपनी सक्सेस तो शेयर कर देते हैं बट अपने फेलर्स को कोई शेयर नहीं कर पाता है. सो मैं आपको अपनी मिस्टेक बताऊंगी कि मैंने मुझसे ऐसी क्या गलती हुई थी जो मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाई, वो भी लास्ट राउंड पहुंच के, ताकि आप वो गलती या मिस्टेक रिपीट ना करो एंड आप अपना इंटरव्यू अच्छे से दे पाओ. सो हम स्टार्ट करते हैं कि डिलॉइट में कितने नंबर ऑफ राउंड्स थे. सो गाइज देयर वर 5 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. फर्स्ट 2 वर टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स and then there was a HR round, then there is one version test round, and the last round was a partner or director round. So yes, I could not able to clear the partner round. So let's see why I could not able to clear that. Every round was a rejection round. That means if you clear the first round, then only you will receive the call or mail for the second round, and they don't have any criteria about when they will select you for the second round or when they will mail you. They don't have any criteria about that, and they will not inform you about that. So you should have to wait only. And if you could not able to clear the first round, then they will not call you. They will just mail you a short rejection mail. And one thing I must tell you that, and I don't like about them, that is they don't share the reason why they have rejected you. They should have changed their rules so that students could realize their mistakes and should not repeat the same mistake in future. When I got this opportunity, I had not applied anywhere. I was not expecting any HR call from anywhere. But guess what? I got the opportunity from one of the big four for Deloitte FTH role, fixed term hire, that is known as fixed term hire role. And I was not aware about anything. मुझे कुछ भी नहीं पता था उस टाइम कि मैं कहाँ से इंटरव्यू प्रिपरेशन करूँ, बिकॉज जस्ट एग्ज़ाम के 1.5 मंथ्स पहले मुझे कॉल आती है कि आप डिलॉइट FTH इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हो एंड आपका इंटरव्यू है कुछ दिन बाद. एंड आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग इट, बट मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने इसे जाने नहीं दिया. मैंने सोचा कि ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, फिर साथ साथ मैं इंटरव्यू की प्रिपरेशन भी कर लेती हूँ और मैं दे देती हूँ इंटरव्यू. देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू, and then there was a round 1, that is first technical round. I will tell you from where I had prepared my interview for FTH role, and I will share with you a video on it so that you will also prepare well. So guys, till then do subscribe the channel so that you will not miss the video about Deloitte FTH interview questions. Okay, so let's begin with the technical round 1. मैं बहुत नर्वस थी, मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि ये मेरा पहला इंटरव्यू एक्सपीरियंस होने वाला था वन ऑफ द बिग फोर के साथ. इससे पहले मैंने कभी बिग फोर का इंटरव्यू नहीं दिया हुआ था किसी भी प्रोफाइल के लिए, तो मैं बहुत डरी हुई थी. बट गेस व्हाट, जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ना, तो जो पैनल मेरा इंटरव्यू ले रही थी, शी वॉज़ वेरी फ्रेंडली नेचर. शी वॉज टॉकिंग सो स्मूथली, एंड माई नर्वसनेस, मेरा जो डर था, मेरी जो नर्वसनेस थी, वो सब कम हो गई. एंड आई वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड द क्वेश्चंस वर वेरी बेसिक, वेरी सिंपल क्वेश्चंस, that is assertions, materiality, internal controls, going concern, just like that. I will share you the list of questions with you all. So then my first questions, that is, tell me about yourself. You should prepare them. This was a basic questions, everyone should prepare it very well. This was the first impression you can give to your interviewer. Okay, then the interview was last for 25 to 30 minutes, and then she asked me to put questions to her, and I asked some questions, and then the interview was completed. Then after 2-3 hours I received the mail that I have selected for the second round, and the second round was just after 1 hour when I received the mail. So I was started preparing for that also, and that round also was gone well. Then on the same day at night I received the mail for the HR round, and you all know the HR round was very basic. HR राउंड नेक्स्ट डे हुआ था मेरा, और HR राउंड बहुत बेसिक था. उन्होंने अपने बारे में बताया, पहले मेरे बारे में पूछा, फिर अपने बारे में भी बताया, एंड सैलरी डिटेल्स बताई, कंपनी के बारे में बताया, सब कुछ बताया. बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत बेसिक राउंड था वो. सिर्फ 15 मिनट्स तक चला था वो, एंड दैट्स ऑल. देन फिर कुछ टाइम बाद मेल आई कि आई वॉज सेलेक्टेड फॉर द वर्सन टेस्ट. देन मैंने वर्सन टेस्ट दिया. वर्सन टेस्ट की पूरी लिस्ट मैं आपको जल्दी बताऊंगी, जल्दी उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी ताकि आप भी अपना वर्सन टेस्ट अच्छे से दे पाओ. मेरा वर्सन टेस्ट भी बहुत अच्छा गया था, एंड आई वॉज एबल टू क्लियर दैट. सिर्फ और सिर्फ लास्ट राउंड, पार्टनर राउंड में बहुत टाइम लग गया था. दे ऑलमोस्ट 10 डेज़ बाद मेरा पार्टनर राउंड हुआ था, और
वो भी क्या कहते हैं, उसकी वजह से मेरी पढ़ाई कहीं ना कहीं तो क्लैश हुई थी, कहीं ना कहीं तो डिस्टर्ब हुई थी, बट इट्स ओके, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने ट्राई किया था। फिर आता है पार्टनर राउंड, दैट इज़ मेरा रिजेक्शन राउंड। सो मुझसे गलती क्या हुई थी कि मैंने जब सारे राउंड्स क्लियर कर लिए ना, तो मैंने ये सोच लिया था कि पार्टनर राउंड ही तो है, बहुत जनरल क्वेश्चन ही पूछेंगे, बहुत बेसिक रहेगा, जब इतने राउंड्स क्लियर हो गए तो वो भी क्लियर हो जाएंगे, जैसे एक ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो मेरे साथ यही हुआ था कि मैंने अपना एक ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर लिया था, और फिर जब इतने दिन का गैप था उसमें कि 10 डेज़ का गैप था, तो मैंने उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी जितने अच्छे से मैंने अपने पहले 2 टेक्निकल राउंड्स के लिए प्रिपरेशन की थी। सो कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक हो गई। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि पहले तो उन्होंने मतलब मुझसे पूछा कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, बेसिक क्वेश्चन 2-3 टेक्निकल क्वेश्चन पूछे, बेसिक क्वेश्चन पूछे। फिर ना मेरी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग हुई थी, मैंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करी है HDFC बैंक से। तो उन्होंने एक ये लिंकेज क्वेश्चन पूछ लिया था कि ऐसा क्या मैंने अपने HDFC बैंक में प्रोफाइल में सीखा है जो मुझे इस ऑडिट के प्रोफाइल में FTH रोल में काम आएगा। एंड ऐसा नहीं है कि मैंने आंसर नहीं दिया था, मैंने बिल्कुल आंसर दिया था, बट आई थॉट कि उन्हें मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं लगा था, या उतना इन्फॉर्मेटिव नहीं लगा था, उतना अच्छा नहीं लगा था। सो वो फिर मुझ में इंटरेस्ट दिखाना बंद हो गया। एंड दैट टाइम मुझे उनके इंटरेस्ट से ही लग गया कि उन्होंने जब दूसरा क्वेश्चन पूछा और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि इट्स ओके, यू कैन गो। तो मुझे तभी ऐसा लग गया था कि कहीं ना कहीं मुझसे मिस्टेक तो हुई है, शायद मैं अच्छे से उस आंसर का जवाब नहीं दे पाई। And then after a few hours I received the mail that I have not selected at the partner round. तो मुझे पहले तो मतलब मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने अपना इतना टाइम दिया, इतना सब कुछ दिया, मेरी पढ़ाई में भी इफ़ेक्ट हुआ था इसकी वजह से। बट फिर कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि क्यों नहीं मेरा हो पाया, मैंने कहाँ गलती की है। एंड मैं समझ गई थी, भले उन्होंने मुझे नहीं बताया वाई आई हैव नॉट सेलेक्टेड, बट मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ पता थी कि मैं क्यों सेलेक्ट नहीं हुई हूँ। मैंने थोड़ा सा, मेरा ओवर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया था क्योंकि मैंने 4 राउंड्स क्लियर कर लिए थे, एंड जिसकी वजह से मैंने पार्टनर राउंड के लिए उतने अच्छे से प्रिपरेशन नहीं की थी, एंड वही मेरी गलती थी। सो आप लोग प्रिपेयर अच्छे से करके जाइएगा कोई भी इंटरव्यू राउंड के लिए, क्योंकि एवरी राउंड वॉज अ रिजेक्शन राउंड, एंड आप कभी भी रिजेक्ट हो सकते हो। ऐसा नहीं होता कि आप पार्टनर राउंड है तो आप रिजेक्ट नहीं होंगे, तो आप कहीं भी रिजेक्ट हो सकते हो। तो मेरी तरह ये मिस्टेक आप मत करिएगा। रिजेक्शन उस वक्त तो दुख देता है, बट बाद में रियलाइज़ होता है कि ये भी एक हिडन ब्लेसिंग है, और शायद इसी ब्लेसिंग की वजह से आज मैं वन ऑफ द बिग 4 में सेलेक्ट हो चुकी हूँ एज अ CA फ्रेशर। सो इसका भी एक्सपीरियंस मैं आपको जल्दी शेयर करूँगी। अगर आप इंटरेस्टेड हो जानने के लिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर ड्रॉप करिएगा, एंड मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आऊँ। सो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। दिस इज CA श्रुति साइनिंग ऑफ।